am Hamara Charge Nutrichar. എൻ്റെ പേര് വിജിനി സഞ്ജയ്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം, വാക്കുകളില്ല പറഞ്ഞറിയിക്കാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ധൃതി പിടിച്ചു പോയി. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങള് ഞങ്ങള് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട്, നല്ല ഫുൾ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ വീഡിയോ എടുത്ത് എന്താ പറയാ, ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസുകളായിരുന്നു. ജീവിതത്തില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നത്. അതും എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ലൈഫിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്ന മനീഷ മാമിനും മിലൻ സാറിനും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും വാക്കുകളില്ല നന്ദി പറയാനായിട്ട്. അതിൽ തുടങ്ങി അവിടെ ചെന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എല്ലാം ഒരു പുതിയ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, സന്തോഷം. ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിച്ചതിന് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതില് ആ ലക്കി ഡ്രോയിലെ കൂപ്പൺ എടുക്കാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ശരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതത്തില് ശരിക്കും കണ്ണും നിറഞ്ഞ, സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണും നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കിരീടം. ഇത് ശരിക്കും മനീഷ മാം ഞങ്ങൾക്ക് തലയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു നിന്നു പോയി എന്നാണ്. ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ഒരു സന്തോഷം. മനീഷ മാമിനും മിലൻ സാറിനും ഒരു കോടി നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റിയത് ശരിക്കും മനീഷ മാമിനും മിലൻ സാറിനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എം.ഡി. സുരേഷ് സാറ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് എടുത്തു തന്ന സാറിന് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയാണ്. അതുപോലെ ഗോദാ സാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഇത്രയും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എത്ര രസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ കാണാനൊരു അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാണ്. അതുപോലെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളെ എല്ലാ കെയറും തന്ന്, എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല ഫുഡ് എല്ലാം തന്ന് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് സർപ്രൈസ് അടിപ്പിച്ച മനീഷ മാമിനും മിലൻ സാറിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇത്തരം പറഞ്ഞാലൊന്നും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തീരില്ല, അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ പേരില് വിജിനി എന്ന് പേരെഴുതിയ പേഴ്സ്, അതില് നമ്മുടെ പേരെഴുതിയ കാർഡ്. ഇത് ഫുൾ കാർഡാണ്, നമ്മുടെ പേരില് ഫുൾ കാർഡാണിത്. ഇതുപോലെ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ പവർ ബാഗ് ഉണ്ട്, ട്രോളി ബാഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി. എല്ലാത്തിനും മനീഷ മാമിനോടും മിലൻ സാറിനും ഒരു കോടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. JRCM ഹമാര ചാർജ് ന്യൂട്രിചാർജ്. Thank you, Vijni. Thank you so much. So now I will also put Kanakama on the spotlight so that she can translate this for us. Good morning. Good RCM. हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज. विजनी मैडम ने ये बताया कि ये सबसे पहले तो उनकी तो पहली जर्नी थी फ्लाइट में पहली बार बैठी है. उसके लिए कितना भी थैंक्स बोले आप दोनों को, मिलिन सर और मनीषा मैम को, वो कम पड़ेगी. क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमारे फ्लाइट बैठने से लेके वापस बैठने तक का जो एक्सपीरियंस उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसमें वर्ड्स कम पड़ेंगे. उसको वर्बल एक्सप्रेशन देना मुश्किल है उसमें. तो इधर से जब हम लोग पहुंचे तो उधर से लेके शूटिंग, जो हमारा एक एक पल जो है शूट करके और उसको एक यादगार बनाने के लिए जो आप प्लान कर रहे हैं, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं था. तो इतना खुशी भर दिया हमारी जिंदगी में. तो उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, थैंक्स बोलने का या शुक्रिया बोलने का कोई जगह ही नहीं है. किस किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करें. इतना अच्छा बंदोबस्त किया, वो रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई. कमरा बिल्कुल इतना बढ़िया सा कमरा दिया रहने के लिए, इतना अच्छा सा खाना और हमारे एक एक बात पे केयर करना. और उसके बाद जो सरप्राइज मिले, एक एक पल जो है जो उधर बीती है वो सब सरप्राइज से भरे हुए थे.
कोई ऐसा पल नहीं था। नेक्स्ट वो इंतजार था वो अगले पल क्या होने वाला है। अभी एक सरप्राइज शुरू हो गया, वो खत्म भी हो गया, तो अगले के लिए इंतजार ऐसे ही होता रहा। अब पूरा 2 दिन जो लकी ड्रॉ में भाग लेने का अवसर मिला वो तो कभी सोचा ही नहीं था। और ये तियारा जो पहनी है उसके बारे में तो कहना ही नहीं है, वो तो किसी ने भी नहीं सोचा। तो ये छोटी सी जो टीम है फैमिली जैसे न्यूट्रिशियन न्यूट्रीचार्ज की ऑफिस स्टाफ, उसका तो बिग सैल्यूट था। दिल और दिमाग लगा के काम करने वाले देखना तो न्यूट्रीचार्ज फैमिली और हम सब ऐसे ही बनते रहे, आगे चलते रहे। और गोदा सर से जो मिलने का अवसर मिला वो तो कभी सोचा ही नहीं। कितने कितने साल से लोग आरसीएम में काम कर रहे और इतने छोटे से दिन में और इतने कम दिनों में काम करके हम उन तक पहुंच पाए, उनसे बात कर पाए। ये तो जिंदगी में कभी दोबारा पता नहीं होगा भी नहीं होगा। ये हमारी जिंदगी तो एक दूसरी तरफ ले गए। जो मानते नहीं थे उसको मानना पड़ेगा। जो इधर आने के बाद भी इतने सारे लीडर्स पहुंच गए हमको लेने के लिए, और उधर 7:30 बजे पहुंचने के बाद 10:30 बजे तक हम लोग वही थे, 9:30 बजे तक। उधर से घर पहुंचते पहुंचते रात 1 बजे तक हो गया किसी किसी को। तो बिजनी मैडम जब तियारा पहनवाए और जो एक एक सरप्राइज जब सामने आते हैं तो आंख भर आते हैं, बिल्कुल वर्ड्स नहीं, आंख भर आते थे। तियारा जिसने भी पहना सबके तो आंसू बह रहे थे। वो तो खुशी की आंसू है। ये तो मैडम ही कर सकती है, मैडम की टीम ही कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोला कि ये मेरा काम नहीं है, वे उसका काम नहीं है। हर जन एक से एक बढ़कर काम करते हैं, दिल भर के वो दिमाग दिल लगा के काम करते हैं। बिग सैल्यूट अगेन मैम हमारी इस खुशी के लिए। My pleasure. Thank you so much. And I am so happy. I can't tell you. I mean, this is a very, very proud moment for all of us because और ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की वजह से ही है। I am the same for everyone, but जो आप लोगों ने दे दिया है, I mean, I can't thank all of you enough. Great. So next in line, can we hear from Kanakamma herself? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे बिजनी मैम ने कहा, मैं इधर से जब निकली तो मैं तो फ्लाइट कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन ना मेरे जो दिल में जो विश था एक एक करके पूरा हो गया। तो पिछली बार 2-3 महीने मार्च महीने में मेरा बेटा दुबई चला गया। उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जब मैं खड़ी थी तो मैंने दिल में ये ठान लिया, अगली बार जब मैं आऊंगी मैं फ्लाई करने के लिए ही आऊंगी। तो खुदा ने सुन लिया, वो फ्लाइट करने के लिए ही मैं उधर पहुंची। और दूसरी बात, इधर से जब मैं निकलने वाली थी तो मेरा बेटा बोला कि मनीषा मैम को बता देना न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट कैरी करने के लिए एक बैग दिलाने के लिए, एक बड़ी सी बैग दिलाने के लिए। उधर जाते में वो भी मिल गया। तो मैं दिल में सोच के रखी थी मैडम से बात करने के लिए, हमारी ये कार्ड जो जिन्होंने दिखाया ना, वो कार्ड के लिए बताने के लिए या पूछने के लिए। मैंने एक दुकान में देख भी लिया था, विजिटिंग कार्ड करके छोटा छपाने की मैं सोच रही थी जाकर आने के बाद, लेकिन वो तो होना ही नहीं था। तो दूसरी तरह से कितना भी उसका वैल्यू करे वो वैल्यू नहीं हो सकते। और हमारा नाम लिखे जो कार्ड छपवाया, और ये सब ना कैसे थैंक्स बोले कैसे बताए मालूम नहीं मैडम। और जो डांस पार्टी हुआ है उसके बारे में मस्ती मारने के लिए, तो वो तो अलग ही चीज है। गुरु शिष्य सब एक बन गए उधर जो टाइम बिताया। और जितने तारीफ उनका जो बच्चा वो अभिषेक, उसका कितना भी तारीफ करे वो कम है। वो एक एक पल वो शूटिंग कर करके इतना पेशेंस, उसको मैंने आते में उसको ये बताया, बेटा ये खोना नहीं, तुम्हारी ये अच्छी आदत जो पेशेंस का है वो बनाए रखना।
ये तो कभी जिंदगी में ही नहीं खोना है। इतनी अच्छी सी वो टीम है, हम और आगे बढ़ पाएंगे। ये सब कोई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, कोई कुछ भी करे, एक हाउसवाइफ है कितना काम करते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करते, अपने घर के लोग पहचानते नहीं है वो क्या करते हैं। इतने में हम इतनी दूर न्यूट्रीचार्ज के कुछ सेल करने में इतना सब कुछ आप लोगों ने हमारे लिए कर दिया, ये तो कभी भूल नहीं सकते। मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा करे मुझे सब जान जाए, जहां भी मैं काम किया उस जगह की तो मैं रानी बन के ही लौट के आई, लेकिन जहां भी मैं पैर रखूं मेरा इच्छा यह है कि जो चारों तरफ है, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, वो अच्छी तरह मुझे जाने, क्योंकि मैं इतना सिंसियरली काम करती हूँ। मैं पढ़ के, मैं अपने आप सीखने के बाद दूसरे को सिखाने की इच्छा रखती हूँ, वैसे ही करके आई हूँ, इसीलिए मैं इसमें आई। आरसीएम में इतना कंपनी जुड़े हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज में जो पढ़ने का, वो सीखने का जो अवसर है वो किसी और में नहीं है, इसलिए मैं इसी से जुड़ी हूँ। तो कितना सारा जो मैं सीखती हूँ उतना सारा मैं सबको सिखाती हूँ, तो सभी कर सकते हैं, ये किसी के लिए। तो इधर हम आने के बाद ना, मेरा बेटा और मेरा अपने दिवेश सर बता रहे थे ये तो वीरांगना ही है, हम लड़कों के लिए कुछ नहीं है। मैंने बताया क्यों नहीं है, लड़कों के लिए जरूर मिलेगा, आप ऐसा ही करें जो हमने करके दिखाए। आप घर से निकलिए, आप बेचिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, हम बता देंगे, तो आपको भी मिलेगा ऐसे ही। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये औरत है इसलिए किया, ऐसे नहीं है। न्यूट्रीचार्ज हम लेते हैं सबके लिए, देते सबके लिए, तो काम भी कर लीजिए। उनको ऐसे मजबूर करना, काम करके ऐसे मजबूरी में उनको पहुंचाना जो वो बुला सके, आपको उधर बुला के इसी तरीके से आपका सम्मान करे। तो हमने जो किया वो आप भी कर सकते हैं, ऐसे उधर ही समझाए। सारे बड़े लीडर्स आए थे, हमें तो हैरान हो गए, वो लोग एक एक करके अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, हम आ रहे हैं, हम ऑन द वे, ऐसे करके 9:30 बजे तक कितने सारे लीडर्स आए। वो सब वीडियो आपको भेजे हुए हैं, चाहे आप समझे ना समझे, लेकिन नहीं, मैं एक्सप्रेशन से जान सकती। बहुत इतना अच्छा हुआ बता नहीं सकते मैम, क्योंकि ना कोई भी नहीं पूछते। जब आप इधर थे तो कोई नहीं पूछा, जब होके के वापस आए तो सब लोग इंतजार किए हमारा, बाहर एक जने इंतजार कर रहे थे, बाकी जुड़ते गए, आखिर में तकरीबन 25 लोग थे। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए मेरे जिंदगी में पहली बार। मैंने बताया अभी तो सरप्राइज बाकी है सर, अभी तो पिक्चर बाकी है बॉस, ऐसे बोल के मैं आई। तो आप बनाते रहिए सरप्राइज को, हम देखते रहेंगे। बिल्कुल सही बोला, अभी तो ये शुरुआत हुई है कनकम्मा, पिक्चर तो पूरी बाकी है। एंड सो नाउ गोइंग नेक्स्ट टू वी हैव रम्या हियर. Yes. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ താങ്ക് യു പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ലൈഫിൽ, ഞാൻ 2007 തുടങ്ങിയ RCMലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 2013 ശരിക്കും എനിക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി, പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ 2007 തുടങ്ങിയ RCMൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത്രയും ഞാൻ അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ, അതായത് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് മനീഷ മാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ, അതായത് യു ആർ കമ്മിങ് ടു മുംബൈ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇരുന്ന് എനിക്ക് കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത് മാമിനോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു, ടിയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് മാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാമിന്റെ അടുത്ത്. അത്ര സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. എനിക്ക് 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടെന്നുള്ളതോ 3-4 വയസ്സുള്ള അടുത്ത ഒരു മോൻ, രണ്ടും ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത്. ഈവൻ ഫീഡിങ് പോലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരാനായിട്ട് തയ്യാറായത്. എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു. ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇവിടെ എത്താനായിട്ട്, നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്താനായിട്ട്. കനകമ്മ മാഡത്തിന് അറ്റാക്ക് വരുമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പേടി, കാരണം ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പോയ കാരണം എല്ലാവരുടെയും സാരി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഓടി വന്നത് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി.
ശരിക്കും 2014 ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഞങ്ങൾ 4 പേരും ഒരു മനസ്സായിട്ടാണ് പോയത്. അവിടെ ചെന്നെത്തി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വീകരണം ശരിക്കും ചെന്നിറങ്ങുമ്പോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം ഞങ്ങളെ നോക്കി അവിടെ അഭിഷേക് സാറും അതുപോലെ ഗീതാഞ്ജലി മാമും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ വീഡിയോ അവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികള് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു മാവുകൾ ഇങ്ങനെ കൈക്കുമ്പിള് കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു തോന്നിയത്. എന്താ പറയാ, മനസ്സിൽ അത്ര വലിയ സന്തോഷം. അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയതും ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകള്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വീരാംഗനാസ് എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി. അതായത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ വഴി, അതല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരെയും, സുനൈന മാം ഓടി വന്നു, റീത്ത മാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആശ, പത്മാവതി, എല്ലാവരും, അനിത, ഒരാളെ പോലും വിട്ട് കളയാനില്ല. എല്ലാവരും ഓടി വന്ന് ഞങ്ങളെ ഹഗ് ചെയ്തു. എന്താ പറയാ, ശരിക്കും കണ്ണുനീരാണ് വന്നത്. ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ പിന്നെ ഫ്രഷായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങള് അപ്പോഴും രാവിലെയും ഗീതാഞ്ജലി മാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എത്തി. തിരിച്ച് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. മനീഷ മാമിനെ കണ്ടത് ശരിക്കും എനിക്ക് കരയാനാ തോന്നിയത്. കാരണം ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ശരിക്കും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരണുണ്ട് ഇപ്പോഴും, അത്ര ഇമോഷണൽ ആവണുണ്ട്. എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അവിടെ എത്തണം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും, എസ്പെഷ്യലി ഞാനും അമ്പിളിയൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കാരണം we didn't expect much, ma'am, but you have given that much wonderful experience for us. We can't express our feelings, truly. We love you so much. Especially ഗോദ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റിയത് തന്നെ സാറിന്റെ അടുത്തിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം തന്ന ആ ഒരു, അതായത് ആ സാറിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, മനസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയൊരാളുടെ മുന്നിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളിമ, വിനയം, അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ റീത്ത മാം ആ ക്യാപ്പ് വെച്ച് തലയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ സാറ് കാല് തൊട്ട് വണങ്ങണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലും മനസ്സിൽ തോന്നിയ സന്തോഷം എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന്. ഇതൊക്കെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മനീഷ മാമിനോടും മിലിൻ സാറിനോടൊക്കെ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു പറയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ എന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മിസ്സിങ് ആ സമയത്ത് കുറച്ചു നേരം വന്നെങ്കിലും പിന്നെ എനിക്കത് തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി കുറെ നാളിന് ശേഷം എല്ലാവരും മുന്നിൽ. ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകളായിരുന്നു. ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. First of all, she thanked both of you, Milind sir and Manisha ma'am, for giving such a wonderful opportunity. It was a unique experience in life. Even though she traveled by flight, but it was not enjoyable. But this time she enjoyed a lot the journey, and she was a bit late. थोड़ी देर से पहुंचे हम दोनों, मैं और बिजनी चेक इन करने के बाद भी पीछे मुड़ के देखते रहे. मेरा बेटा बाहर खड़े फोन करते रहे, ये लोग कहाँ है, पहुंचे नहीं. 5 मिनट बाकी है 10 क्लोज करने के लिए, तो उस टाइम तक ये लोग पहुंचे नहीं. अब मेरा तो गला भी सूख गए, मैं तो चक्कर आ रही थी मुझे सच में इंतजार करते करते. और मैंने सोचा साबी के लिए साड़ी जो उसमें है, ब्लाउज जो है उसमें है, और ये उधर जाके क्या करेंगे. मैंने बिजनी से बोला चल कोई नहीं, एक पिंक शेड साड़ी मेरे पास है, तुम्हारे पास भी है, वो पहनेंगे. ऐसे करके हम लोग तैयार भी हो गए, मन को बना लिया. लेकिन इतने में बेटा फोन करके बताया मामा वो लोग है दूसरे डोर से, वो लोग भी आ रहे हैं. तब जाके मेरा सांस ठीक हो गया. इतना हॉरेबल वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती. मैंने बताया आते ही मैंने बताया मैं अभी हार्ट अटैक हो जाती, मुझे इधर से एम्बुलेंस आ जाते. और
1.5 साल का बच्चा जो दूध पीता है, जब आपने फोन किया, फोन करके बताया कि यू आर कमिंग टू बॉम्बे, कुछ भी नहीं सोचा, बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। ये जिंदगी में पहली बार ऐसे मौका आ रहा है, इसको खोना नहीं चाहती, इसलिए बिना सोचे और कुछ नहीं सोचा, बस निर्णय ले लिया, आपको जवाब भी दे दिया कि मैं आ रही हूँ। उसके बाद जब बच्चे के बारे में सोचे थे, इन्होंने मुझे फोन किया था, मैंने बताया भूल जाओ, आज से टाइम है, 2-3 दिन में तुम उसके आदत थोड़ा सा बदलने को कोशिश करो, मम्मी के पास सुलाओ और दूध जो है बोतल से दे दो, तुम देखो, तुम उसको अलग रखो, ऐसे करके बोला था मैंने उस दिन जब बोला था। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इधर से पहुंचने में मीन्स उधर आने के बाद जो शूटिंग शुरू किया अभिषेक जी ने, तो ऐसे लगा कि हम सेलिब्रिटी लोग हैं, और भी लोग देख रहे थे शूटिंग, ये जो कर रहे हैं और भी लोग हमें देखते हैं, ये कौन आए, ये किसका शूटिंग कर रहे हैं, ऐसे करके शूटिंग सारा हुआ। और पहुंचते पहुंचते ना हम लोग गाड़ी से उतरे नहीं, इतने में ना उधर जो लोग पहले से पहुंचे थे, आशा, सुनैना, प्रभावती, लोग सब आके हक जो किया, वो बच्चे की दुख भी भूल गए, सब कुछ भूल गए, तो हम फैमिली वाले मिल गए, ऐसा एक फीलिंग था हमारा। तो इतना जूम मीटिंग में बस ऐसे देखे आमने सामने, सब अपनी अपनी जगह बैठी है, लेकिन जब सामने सच में सामने आए तो किसी को रोका नहीं पाया, वो सब हक करके आंसू आए, इतनी खुशी कि अपने घर के लोग बिछड़े हुए थे, वापस घर आए, वो फीलिंग था, सबका एक ही फीलिंग था। और उसके बाद जो है फ्लाइट जर्नी, ऑफिस विजिट, उधर उसके बाद जो ऑफिस विजिट हुआ, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऑफिस ऐसा होगा। तो उधर मैडम को देख के मैडम हग किया, और अंदर जब चले गए, एक एक कमरा इतना सजा हुआ, ऑफिस बदल दिया, कई और जगह, ऑफिस नहीं बता सकते उसको, किसी और जगह हमें ले गए, वंडर वर्ल्ड ही था वो। सब लोग इतने खुशी से हमारे इंतजार कर रहे हैं, हमारा वेलकम हो रहा है, और जो जो चाहा दिल में वो सब उधर मिल रहे एक एक करके। आखिर में गोदा सर से जब मिले, वो इतना विनम्र इंसान, इतने ऊपर का पोजीशन जो है, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसका, इसके बावजूद भी जब रीता जी ने उसको टोपी जब पहनाए, उसके पाँव छुए, इससे क्या सीखना चाहिए हम छोटे लोगों को, यही सोच रहे थे, इतना विनम्र है वो, और हंसते रहे, समझाते रहे, ये सब यूनिक एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी बताया, किसी और को ये मौका आज तक नहीं हासिल हुआ, ये सब आपके बदौलत हुआ। मैं, आप हमारे लिए उधर काम कर रहे, हम इधर काम कर रहे, और आपसे काम करवाने के लिए वो मेरा हिस्सा है, उनका नहीं। और भी काम हम दिलवाते रहेंगे, आपको मजबूर करेंगे कुछ और आप पान करने के लिए, ऐसे वीरांगनाएं काम करेंगे, हमारे छोटे बच्चे काम करेंगे। I am so happy to hear this, so happy to hear this, और मैं actually मजबूर होना चाहती हूँ। और एक बात है, 10 साल के बाद रम्या ने डांस किया, 10 साल पहले जो डांस किया वो दोबारा, वो बस याद करके स्टेप ऐसे बैठ के याद हो गया उसको, वो खेलने का, वो डांस करने का मौका मिला। ये सब अनोखे ही है। वाकई ये 2 दिन हम में से कोई भी नहीं भूलेगा। हमने किस किस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं देखी, और माइंड यू, इतने लोग जब देख रहे हो तो अकेले डांस करना बहुत मुश्किल होता है। रम्या ने डांस किया, पद्मावती ने किया, गायत्री ने किया, सुनैना ने किया, और उसके बाद में इन चारों ने मिलकर के, कनकम्मा, विजनी, एम्बली और रम्या, चारों ने मिलकर के एक फोक सॉन्ग गाया। उसके बाद विजनी ने लीड किया, फिर चारों ने गाया, मतलब इट वाज ऑसम। आशा इज हियर, सो आशा प्लीज अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे तो मॉर्निंग में भी आज आपके इतने
प्यारे बोल मुझे सुनने को मिले सुबह सुबह की, बेटा तुम पहुंच गई हो। मैम वो सब मतलब इतना दिल पे छू जाता है ना कि मैं ट्रेन में ही रोने लगी थी। मतलब जो इतना केयरिंग आपका है ना नेचर, बाकी सब चीजें तो वही सब फीलिंग थी जो कनकम्मा मैम ने बोला, विजनी मैम ने बोला, रम्या मैम ने बोला। उसके अलावा कल हमारे साथ जो हुआ एक्सीडेंट कहना चाहिए, और हम लोग वहां पे भी हिम्मत नहीं हार रहे थे, बोल रहे थे मनीषा मैम ने सिखाया है ना, हम वीरांगना है, कहीं भी बिजनेस खड़े कर देंगे। अगर मौका मिला हमको हैदराबाद में रुकने का तो यहाँ भी एक ना एक डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करके जाएंगे। और उसके बाद आपसे बात करने के बाद मतलब उससे पहले थोड़ा सा तो मैम टेंशन था कि अब कैसे होगा क्या होगा, पहली बार फ्लाइट से हम बाहर निकले थे घर से अकेले, और ये प्रॉब्लम अगर हो गई तो पता नहीं दोबारा हमको मौका मिलेगा घर से अकेले बाहर जाने का या नहीं। और उसके बाद आपका कॉल आया, गीतांजलि मैम से मैंने बात की, आपने पूरा क्लियर कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हम आपके साथ हैं। वहां पे हम लोग को ये लगा कि जब हमारी माँ हमारे साथ है तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती मैम। उसके बाद फिर वहां से हम रिटर्न आए, सडनली आपसे बात हुई, फिर ऊपर वाले के साथ आपके साथ साथ ऊपर वाला का भी साथ इतना था कि ट्रेन टाइम पे थी, मुझे टिकट भी कंफर्म मिल गई और वहां स्टेशन तक अकेले गई। उसके बाद मुझे स्टेशन के अंदर भी ऐसा एक बंदा मिल गया मैम जो मेरे बैग्स लेके, मतलब मैं परेशान थी तो मेरे बैग्स लेके और मुझे मेरी सीट तक लेके गया, और इत्तेफाक से मेरा 39 था सीट नंबर और उसका 38 था। वो अपनी सीट में मुझे बिठा के बोला मैम आप सेफली यहाँ बैठो, आपकी सीट में मैं बैठ जाता हूँ, वो लोअर है वर्ग, आप ऊपर बैठ जाओ, आराम से लेटो सो और जाओ। ऐसे करके इतना हेल्प किया मैम। मतलब अगर मुझे अभी कोई पूछे कि सबसे पहले पूजा आप किसकी करोगे तो मैं आप सबकी बोलूंगी, मिलन सर, मनीषा मैम और पूरी नीतिशा टीम को बोलूंगी कि यही मेरे सब कुछ है। ऊपर वाले से तो हम सिर्फ दुआएं करते हैं, लेकिन आशीर्वाद भरा हाथ आपका नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते मैम ना। मतलब हमारे बच्चे हमारे साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे रम्या मैम का बेटा 1.5 साल का है, फिर भी वो अपनी माँ को इतना सपोर्ट किया। मेरी बेटी वो भी मतलब बोलती थी मैं आपके फोटो को ले लेके रोती थी, माँ आप नहीं थी। तो ये सारे वर्ड मतलब सुनने में यहाँ पे चुभता है, लेकिन एक खुशी की बात ये है कि हम सब जो पाना चाहते थे आज तक, जो हमने सोचा था कि अपनी एक अलग पहचान बनाए और एक अलग हमको प्लेटफॉर्म मिले सारी वीरांगनाओं की, ये चीज हमारा सपना पूरा हुआ मैम। और इतनी जल्दी पूरी होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था, और आपने पूरा किया मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपसे मतलब कहने को बहुत कुछ है लेकिन वर्ड नहीं मिल रहे हैं मैम, और ये हम सबके साथ हो रहा है। और पहली बार मेरे हस्बैंड मुझे रिसीव करने गए, फूलों का इतना बड़ा पॉलिथीन और एक के बाद एक मेरे गले में माला डाले, और वहां जितने लोग नीचे उतर रहे थे सब बस मुझे देख रहे थे कि मतलब हो क्या रहा है। उसके बाद फोटो क्लिक किए, फिर मैं घर आई। मतलब मेरी जो एक डाउन लाइन है उन्होंने मेरा तिलक से स्वागत किया। बच्चे मेरी आवाज सुन के तीनों बच्चे आके मतलब मेरे पास बैठ गए, माँ आ गई करके। सारे मोमेंट इतने मतलब इमोशनल वाले हैं मैम की मतलब कुछ बोला ही नहीं जा पा रहा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ नहीं समझ में आता मैम। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको ही दूंगी मैम, और मिलन सर को, और हमारे सम्मानीय गोदा सर से मिलके तो मतलब बिल्कुल ये लगा ही नहीं कि चेयरमैन ऐसे भी होते हैं जो इतने अच्छे से हम लोगों को हर चीज की गाइड किए, इतने नॉर्मल तरीके से बात किए। और सबसे अच्छा तो हम लोग को यही लगा कि वो हमको यही सिखा रहे हैं कि हमेशा विनम्र रहो, नम्र रहो। और ये चीज उन्होंने रीता मैम के पांव छू के हमको
सिखाया। चाहे हम किसी भी चीज में कितने भी बड़े लेवल में चले जाएं, लेकिन जो डाल वही चुगता है जिसमें फल लगता है। ये चीज हमने सीखा मैम। आज उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनका नेचर देख के कितना अच्छा है मैम। और मेरे कुंजाम सर जो टेक्निकल अचीवर है, मेरे गुरुदेव हैं, जिनके इंस्पायर से मैं आज इस वीरांगना क्लब की मेंबर बनी हूँ। वो लास्ट में ट्रेन में बैठते तक मेरे को फॉलो करते रहे कि कहाँ हो, ट्रेन मिली कि नहीं, कैसे हो, पहुंच गए। मॉर्निंग में भी उन्होंने कॉल किया कि पहुंच गए, सही सलामत घर पहुंचे कि नहीं। अब वो दूर हैं तो कुछ नहीं बोले, बट बोले कि हमको इतनी खुशी है आपके आगे बढ़ने से कि आपके साथ साथ हमारा नाम भी तो जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें मैं मतलब इतनी सारी मेमोरी, बाप रे, आपके साथ का डांस, आप जो एकदम इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी, कि ना चाहते हुए भी आपके लिए हमको सीटी बजाने का मन कर रहा था, तालियां बजाने का मन कर रहा था। आपके साथ हमने इतना एंजॉय किया मैम। ये सारे मोमेंट हम कभी भूल ही नहीं सकते मैम। और ये इतना प्यार, आप लोगों का इतना केयर, मतलब इसके लिए तो कुछ है ही नहीं हमारी जिंदगी में। आगे अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ अब एक ही चीज रह गया है कि हम आपको खुश करें और आपका साथ हमको बार बार मिलता रहे मैम। थैंक यू सो मच मैम। बस मैं अब इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत खुशी हुई मैम, मेरे बच्चे सारे बहुत खुश हैं, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी बोलती है पापा आपका विजिटिंग कार्ड नहीं बना है, मम्मा का देखो कार्ड बन गया, अब आप भी बनवा लो। मेरे बच्चे भी इतने खुश हैं मैम कि मैं कुछ नहीं कह सकती मैम। बस थैंक यू सो मच मैम, और जितनी भी शुक्रिया करे कम। Great, Asha. Thank you. So now we have Hemlata here. So I'll request Hemlata, आप please अपना experience share करें. मैं spotlight पे डाल रही हूँ आपको. गुड मॉर्निंग मैम। हमारा चार्ज न्यूट्रल चार्ज आराम से पहुंच गई तुम? बिल्कुल मैम, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और पहुंचते ही गीतांजलि मैम का भी फोन आया, उसने मुझे बता दिया था। करिए, तो बहुत अच्छा लगा मैम। मैं तो अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करूं। मुझे तो जिस दिन से आपका पहला कॉल आया था 5 सितंबर, तब से ही मुझे सरप्राइज ऐसा लग रहा था कि यार मैं जो सोच रही थी कि मुझे फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठना है, उसके लिए जो मैं मेहनत कर रही थी वो तो मुझे पहले ही मिल गया। जिस दिन आपने मुझे बोला कि आपकी इसमें फ्लाइट से आप पाऊंगी, 1 घंटे की जर्नी है, तो मुझे लगा यार क्या मैं फ्लाइट में जा पाऊंगी अकेली। लेकिन जो आपने मुझे हौसला दिया कि नहीं यार पहली बार आएगी, यही तो बताने के लिए बहुत आपको मिलेगा, तो मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, बात की घर में, तो घर में से भी जल्दी परमिशन मिल गई। बच्चों का और सर ने सबका ले लिया कि हाँ मैं कर लूंगा, चले जाओ। घर में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया। और जब हम यहाँ से निकले नाइट में, वहां पे भी ऐसा लग रहा था कि अब मुझे डर लगेगा फ्लाइट में, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत आराम से मैं मुंबई पहुंची। और वहां पहुंचने केवल 5 मिनट में वेट किया तो 3 बार गीतांजलि मैम का फोन आया। तो मैंने कहा बाप रे इतना, मैंने मैडम से बोला भी था कि मैडम नहीं मैं रुकी हुई हूँ, आप आराम से पहुंचाइए सर। तो नहीं, मैडम ने फिर भी 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ आ गए वीना जी, मैंने कहा हाँ आ गए। तब मैडम को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलिए अब आ जाएंगे। और जैसे ही हम गेस्ट हाउस में पहुंचे तो मैं थोड़ा लेट थी, सब लोग रेडी हो गए थे, तो मैं रेडी होने गई तो हमारी सारी वीरांगनाएं मुझे रेडी करने के लिए आ गई। फटाफट साड़ी पहना है, फटाफट रम्या मैडम ने, एमली मैडम ने और बाकी सब क्या चाहिए, इतना केयर हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और जैसे ही वहां से हम निकले, वीडियो शूटिंग वगैरह सब कुछ थी। ही बोलना है तो वो वहां से मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार कितना अच्छा हो रहा है। और जैसे ही हम ऑफिस पहुंचे और आपको हक किए तो मुझे लगा मेरी तो पूरी लाइफ अच्छी हो गई। आपसे आपका हक करते ही मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुआ मुझे। लेकिन
मुझे लगा कि अब यहाँ पे जाने के बाद में हमसे कुछ ऐसा करवाएंगे एक्टिविटी अलग से, कि जैसे आपने एक बार बोला था कि हमने कोलकाता गए थे तो जया मैडम को बाहर भेज दिया था सेल करने के लिए, तो ऐसा कुछ करवाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद तो बिल्कुल चेंज, जो हम सोच के गए थे बिल्कुल वहां पे कुछ भी नहीं। तो जैसे ही मिलिंद सर के ऑफिस में गए बैठे तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी कंपनी के सीईओ से बात कर रहे हैं, हमें लगा कि हमारी फैमिली है। और बहुत अच्छे से सर ने भी हमारा वेलकम किया, पूरी टीम ने। और जो हमें सरप्राइज एक के बाद एक मिले, तो उसके लिए तो हम क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। जो हमारे विजिटिंग कार्ड बने, ये कार्ड पे नाम तो है, इसके साथ साथ यदि हम किसी को एक कार्ड देना तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से ये पूरे इस पे है। तो यदि किसी को लगेगा कि इनसे बात करनी है, क्या लेना चाहिए, तो ये पहले ही इस बारे में जानकारी लेकर रख सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट इस पे छपवा के दिए हैं। और इसके रखने के लिए जो पाउच हमको मिला है ना, यहाँ पे भी हमारा नाम लिख कर आया। तो इतनी बारीकाई से तैयारी की गई थी कि इसके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और जैसे विजनी मैडम ने बताया, पावर बैंक मिला है, बैग, बहुत सारे गिफ्ट्स हमको मिले। उसके बाद हमारे वीडियो, जब हम हमेशा दूसरे वीडियो आते थे, आरसीएम के लीडर्स के आते थे, उनकी फैमिली के आते थे। अभी तक के जो मेरी बेटी मेरे अभिमान में न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए जो भी वीडियो आए, तो पूरे आरसीएम के लीडर्स और उनकी फैमिली का फर्स्ट टाइम और इतने कम समय में हम लोगों का शूट किया गया है कि हमारा भी एक वीडियो बनेगा। तो इसके लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना ज्यादा खुशी हो रही है। और खुशी के मारे तो बोल भी नहीं निकल रहे। बट इसके और फिर हमें इतना बड़ा मौका मिला लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए। तो जब हमें पूरी इंडिया ने देखा लकी ड्रॉ का, हमें इतना सौभाग्य मिला कि हमने लकी ड्रॉ को निकाला, तो हमें पूरी इंडिया में देखा। तो हमारे लीडर्स लोगों की तो आंखें खुली की खुली रहती। और वहां से जब फिर शाम को कॉल आने, ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपको वहां बुलाने गए। फिर उन लोगों से मैंने थोड़ा सा बात किया, मैंने कहा हाँ पहुंच कर मैं करती हूँ, क्योंकि वहां पे समय नहीं था। बट हमारी टीम के इतने सारे लोगों ने देखा कि एक एक करके फोन आने लगे और उनसे बात भी हुई। बट थोड़ा और बहुत सारी महिलाएं मेरी टीम में है, तो उन लोगों को बहुत सारा एक गोल मिल गया कि हमको भी वीरांगना क्लब में जाना। मैडम कई फ्लाइट में पहली बार, पहले जब जिस समय मैं जाने की कोशिश कर रही थी, पता चला था हमारी टीम में, तो आप कैसी जाएंगी, आप क्या करेगी। लेकिन जिस तरह से आपने हम लोगों की केयर की, तो हमें तो, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। वहां पे गए, फिर गेस्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफिस में गए तो ऐसा लग रहा था कि हम पूरी फैमिली, और इतनी सारी वीरांगनाएं को हम सब ऑनलाइन देखते थे, हम सब साथ में मिले तो ऐसा लगा कि हमारी पूरी फैमिली मिल गई है, घर सब भूल गए थे हम लोग। और जब हमने पूरा ऑफिस में शूट वगैरह किया, रात में तैयार हुए, तैयार होने के बाद में जब हम पार्टी में गए, तो पार्टी बहुत अमेजिंग थी। हमको सोच भी नहीं सके थे कि इतनी बढ़िया पार्टी में हम लोग कभी जाएंगे। और पूरा इतना मजा किया, सब लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। सर मैडम सब ने बहुत हमारी हेल्प की और बहुत इंजॉय किया। दूसरे दिन जब हम गोदा सर से मिले, तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी अपने ही व्यक्ति से मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा। हम जो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा हमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, चुप ये रहना, कुछ भी नहीं, नॉर्मली। और सर ने तो अपनी फैमिली से रिलेट कर करके हमसे बातें की, तो हम तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि ये सब हमारे जैसे ही व्यक्ति है, हमें कुछ ये नहीं, और ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा सोचती थी कि विजनी मैडम से मैं बात करूं, तो मैं उनके टिप्स जानूं। तो पूरा रात हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब सोने का तो पूरे दिन पड़े हुए हैं, घर में जाके सोना ही है, लेकिन अभी हम बैठकर सब लोग ये डिस्कस करें कि हम कैसा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। अब हम आगे ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ेंगे, तो जो लोग आगे कर रहे हैं उनसे ही पूछ ले। तो उनके टिप्स लिए अब हम बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। और मैडम आपका सपना बहुत पूरा करेंगे। और आपने अभी जो हम 11 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ और सारी ढेर सारी महिलाएं, ताकि आरसीएम बिजनेस में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वर्चस्व। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू मैडम। और आपके कारण ही ये सब हो पाया। मिलिंद सर, गीतांजलि मैम, पूरी अभिषेक जी, विनय जी,
और हमारा मैम सब पूरे टीम ने इतना सपोर्ट किया है कि इनका धन्यवाद तो हम दे ही नहीं सकते, और धन्यवाद शब्द इनके लिए बहुत छोटा होगा। थैंक यू मैम। Wonderful, wonderful. तुमने भी assembly, over to you. Good afternoon, good morning. हमारा चार्ज ന്യൂട്രിച്ചർ. എന്ത് പറയാനാ മാം, എല്ലാവരും ലീഡേഴ്സ്, എല്ലാവരും വിജിനി മാമ, കനക മാഡം, രമ്യ മാം, ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഹേമലത മാം, ആശാറാണി, എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. അത് തന്നെ എനിക്കും ആവർത്തിക്കാനുള്ള മാം. എന്താണ് പറയാനെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു 2 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് ബോംബെയിൽ എത്തിച്ച ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ ഓഫീസ്, മിലൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഓഫീസുകൾ, അവിടെയുള്ള ടീമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം എല്ലാം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന്, ഞങ്ങളെ സഹകരിപ്പിച്ച്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു തന്നു മാം. എന്താണ് പറയേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് 1000 നന്ദിയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ മാത്രമുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാമിന് ഈശ്വരൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയുകയാണ്. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വിജിനി മാമിന്റെ ഒറ്റ ഒരു പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ RCM ഈ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ ക്ലബിലേക്ക് കയറി വന്നത്, വീരാംഗന ക്ലബിലേക്ക് വന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കനക മാഡം, രമ്യ മാഡം, അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീമിന്റെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം താങ്ക്സ് പറയുന്നു മിലൻ സാറിനോട്, അതുപോലെ ഗീതാഞ്ജലി മാമിനോട്, പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ ലീഡേഴ്സിനും ടീം മെമ്പേഴ്സിനോടും. അതുപോലെ മാമിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല മാം. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്തതായ അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ വന്ന് കിട്ടിയത്. അമ്മയെ പോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, ചേച്ചിയെ പോലെ കരുതി, ഞങ്ങളെ ഫുഡുകളൊക്കെ തന്ന്, എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ബോധ സാഹിബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി. മന്ത്രിസഭാ മന്ദിരത്തിലൊക്കെ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സന്തോഷം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയേറെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റിയത് മനീഷ മാമിന്റെയും മിലൻ സാറിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടും മാത്രമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു കോടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കാൽകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹമാരാ ചാർജ് ന്യൂട്രിച്ചർ. കനകമ്മ മാം, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല മാം, പറഞ്ഞോളൂ. ये 2 दिन जो आपके साथ और आपके टीम के साथ जो बीते हैं वो मेरे जिंदगी में मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो पहली बार मैंने ऐसा हैप्पीनेस फील किया। ऐसे नहीं लगा कि दूसरे घर पहुंचे या दूसरी जगह पहुंचे, सब घर के लोग जैसे दिखे। और उधर जितना भी केयर किया, जितने लोगों ने, आपके तो ये सब वो आपके लिए सौंपते, ये जो खुशियां जो मिली है उसके सब कारण आप ही है। इसलिए आपकी जिंदगी में सारी खुशियां देने के लिए दिल से प्रार्थना करती है। ഗീതാഞ്ജലി മാം ഒരു കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിലിട്ടോണ്ടാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ആ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ മുതൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സമയം വരെ യാതൊരു ക്ഷീണങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഗീതാഞ്ജലി മാമിനോട് പറയാനുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഞങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കടമ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കടമ ഞങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല. മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഈ RCM ന്യൂട്രിചാർജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമായി മാമിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കും. തീർച്ചയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറച്ചൊരു തീരുമാനമാണ്. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്റെ ഉള്ള എല്ലാ വീരാംഗനസും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കും മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. गीतांजलि के लिए बोले, गीतांजलि पेट में बच्चा है ये भी भूल के हमारे साथ इतना एक्टिव रहे। कोई थकावट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, खुशी से सारा काम कर लिया। आपके लिए भी प्रत्येक प्रार्थना है। और जो मैडम ने जो सपना देखा है, हम सब मिलके आपके सपने को और आगे करने के लिए, आपको सबके ऊपर का नाम देने के लिए, आपको ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए हम सब मिलके काम करें। थैंक यू सो मच. थैंक यू. न्यूट्रिचार्ज ने जब से हमारा जुड़ाव है,
तब से ऐसी अनेक चीजें की है जो उस लेवल तक मैं कभी नहीं सोच पाया। उससे बहुत बहुत ऊपर जाके उन्होंने सोचा और उन्होंने किया। तो ये एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि कोई भी इंसान किसी सीमा तक नहीं सोचने के लिए मजबूर है, वो कितना भी सोच सकता है। और आज पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे परिवार है, डायरेक्ट सेलर्स का परिवार है, उन सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि न्यूट्रीचार्ज आरसीएम से कई गुना बढ़कर सोच सकता है। 11 वीरांगनाएं इस देश की समस्त महिलाओं को एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हो सकती है। तो यानी इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये परम सत्य आज दिख रहा है। कोई सीमा नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सोच की बात है। आज 11 वीरांगनाओं को हमने देखा, उन्होंने काम उस समय किया जब कोई वीडियो उनको नहीं दिखाया गया, कोई ऐसा कोई उनको बहुत बड़ा सपना नहीं दिया गया। उनको जस्ट ये जो भी किया गया न्यूट्रीचार्ज ने बाद में विदाउट कोई एनी अनाउंसमेंट, उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक जो ड्रॉ वगैरह भी जो भी निकालना था, एक जस्ट एक थॉट आया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया और वो संयोगवश जो भी बनना था बन गया। पर उनको ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया, कोई ऐसा नहीं किया, कहा गया। जस्ट अपनी स्व प्रेरणा से एक थॉट तो मेरे मन में ये आया, क्योंकि वो जो भी थी कोई ऐसा नहीं कि कोई उसको कोई न्यूट्रीचार्ज बेचने का कोई 10 साल का कोर्स करके आई हो, कि कोई बहुत बड़ी डिग्री या कोई बहुत बड़ा कोई टैलेंट का ऐसा कुछ हो। बहुत सामान्य, क्योंकि मेरी बातचीत इस मामले में होती रहती है, मुझे पता है वो सारी जानकारी। ये मत समझ लेना कि वो कोई लोभी लालची प्रवृत्ति की महिला है इसलिए वो बेच पाई। कुछ और है भीतर, और वो जो कुछ और है उस पे काफी रिसर्च तो मैंने की है, और हम सब मिलके वो रिसर्च करेंगे, और जो वो होता है ना, जो ऐसा करवा पाता है, उसको हम प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीर और वीरांगनाएं हमें खड़े करने हैं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सो मिलिंद सर, फील्ड से न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो आज थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। पहला सवाल जो फील्ड से आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब है क्या? सो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब एक ऐसी जगह है जहां पे एक महिला डायरेक्ट सेलर अपने जीवन को रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनको हासिल होगी यहां आने के बाद। एक, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, और दूसरा, उनकी इनकम मल्टीफोल्ड ग्रो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जो वीरांगनाओं ने अभी तक ज्वाइन किया है, जो इतनी पहले की जो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना बनी है, उनमें से कई लोगों की मंथली इनकम जून या जुलाई के महीने में मुश्किल से 2-3-4 हजार 5 हजार रुपए थी, जिसको कि वो 15,000 20,000 रुपए तक बढ़ा पाएंगे 1 महीने के अंदर। तो ये जो मैं रूपांतरण की बात करता हूं, ये वो रूपांतरण है। सो इसमें कौन कौन सी महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं? न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में वो महिला डायरेक्ट सेलर जो खुद के आईडी पे काउंसलिंग करने में और सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, उनको एंट्री लेना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में आने के बाद एक वीरांगना को यानी महिला डायरेक्ट सेलर को रोज फील्ड में जाके काम करना होता है, रोज नए नए लोगों को मिलना होता है, और लोगों से बात करनी होती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में। तो ये बहुत जरूरी है कि जो महिला डायरेक्ट सेलर ये सब करने में इच्छुक थे, उन्होंने ही इसका पार्ट बनना चाहिए। और प्रोसेस यानी कि क्या इन लोगों के साथ यहाँ पे करते हैं, मेरे ख्याल से वो तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आप कर देंगे।
सो यहाँ पर जो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्लब में सिर्फ और सिर्फ महिला डायरेक्ट सेलर्स आ सकती हैं और यहाँ पर हम उनके साथ में बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर वक्त बिताते हैं। हम उनके साथ जूम सेशन करते हैं रोज सुबह 9 बजे और सारी वीरांगनाओं को ये सेशन अटेंड करना कंपल्सरी है। और जैसा कि सर ने कहा, ये जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं। हम सही सोचने का तरीका सीख रहे हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट करना कैसे चाहिए वो सीख रहे हैं, हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं वो सीख रहे हैं हम। तो एक्चुअली जो आपने कहा, सेलिंग करने के लिए, काउंसिल करके सेल करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर मैं इसको एकदम आसानी से समझूं तो यानी कि सिर्फ एक महिला डायरेक्ट सेलर जिसकी इच्छा शक्ति है और जो थोड़ा सा परफॉर्म करिए, अगर वो अंदर आ जाए तो वो आइडियल है, वो अपनी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो इसके साथ साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी कि इसके अंदर न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में ये प्रवेश कैसे पा सकती है? न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में प्रवेश पाने के 2 मेजर तरीके हैं बिजनेस साइड में। पहला तरीका यह है कि आप 30 न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर एक महीने में करती हैं और फिर अगले महीने में वापस 30 न्यूट्रीचार्ज वुमन सेल करती हैं, या दोनों महीने मिला के 60 न्यूट्रीचार्ज वुमन सेल करती हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं तीसरे महीने में न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब का पार्ट बनने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से 10,000 बीवी 2 महीने तक लगातार करता है। एक महीने में या दोनों महीने का मिलकर 20,000 बीवी करने से एंट्री नहीं मिलेगी, दोनों महीनों में 10,000 बीवी अलग से करना आवश्यक है। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, क्योंकि जैसे आपने बताया यहाँ पे कि हम कौशल को अपग्रेड करने की बात हो रही है, इसलिए उसके लिए 2 और चीजें आवश्यक है। एक एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करना आवश्यक है उनको, और उनके पास एक बॉडी स्कैनर होना आवश्यक है। ना हम समझते हैं अभी बॉडी स्कैनर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जब तक नहीं आते तब तक वो आ सकती है। जब बॉडी स्कैनर अवेलेबल हो जाएंगे तब उन्होंने खरीदना। तो इन 3 चीजों का आवश्यकता है, बिजनेस, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और बॉडी स्कैनर, और उनको अपने सेल्फ आईडी पर काम करना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। वो महिला डायरेक्ट सेलर्स आरसीएम की जो खुद के आईडी पे काम कर रही हैं, यानी कि अगर कोई ऐसी महिला है जो अपने पति के, अपने भाई के आईडी पे या किसी और के आईडी पे काम कर रही है, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जहां पे कि वो व्यक्ति काम कर रहा है, पति काम कर रहा है और आईडी महिला के नाम से है, तो भी उस महिला को प्रवेश नहीं मिलेगा। कंडीशन ये है कि उस महिला का आईडी खुद के नाम पे होना चाहिए और उन्होंने खुद में काम करना चाहिए। दैट इज कंपल्सरी। इसमें कोई भी डेविएशन अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपको कंडीशंस उन्होंने बता दी हैं। एक लास्ट सवाल मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि वो जब प्रवेश पाना चाहेंगी तो क्या हम उनको इनवाइट करेंगे? नहीं, न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब कोई इंटाइटलमेंट नहीं, ये कोई अधिकार नहीं है किसी का। आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में अप्लाई करने के लिए किसी भी तरीके से लोग संपर्क कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज टीम के साथ। सभी के पास में लिंक्स अवेलेबल हैं। तो जिन महिला डायरेक्टर को लगता है कि उन्होंने 2 में से क्राइटेरिया अचीव कर लिया है, इधर न्यूट्रीचार्ज वुमन के 60 यूनिट्स बेच के या न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से 10,000 बीवी करके 2 महीने तक, वो लिंक के लिए रिक्वेस्ट करें, लिंक उनको भेजी जाएगी, उन्हें अप्लाई करना होगा और उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज, दोनों महीने खत्म होने का राह देखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अगस्त में किसी ने 10,000 बीवी कर लिया और अभी तक ऑलरेडी सितंबर में 10,000 बीवी हो चुका है, तो वो अभी भी अप्लाई कर सकती है ताकि 1 अक्टूबर से ज्वाइन कर सके। उनको 30 सितंबर तक रुकने की आवश्यकता नहीं। ओके, थैंक यू सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी सर ने। तो जैसा सर ने बताया, आप लिंक पाने के लिए न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर से संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, गीतांजलि से, मुझसे, आप हमारे लैंडलाइन पर कॉल करके भाग्यश्री से संपर्क कर सकते हैं। आप तक लिंक जब पहुंचेगी तब आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।